افغان ہندو کمیونٹیز کے پیارے بھائیوں اور بہنوں نمسکار۔ میں منوہر گابا جرمنی سے آپ کی سیوا میں۔ پیارے دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس میسج کو پورا سنیں اور آگے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ آج میں جس وشے پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کا سمبندھ اتہاسک درشٹی سے ہماری ریئل آئیڈینٹی، ہماری واستوک پہچان یا ہماری بنیادی شناخت سے ہے۔ ہم لوگ خود کو افغان، ہندو اور سکھ کہتے اور مانتے آئے ہیں۔ کیا سچ میں یہی ہماری پہچان ہے؟ پہلی نظر میں یہی لگتا ہے کہ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ میں بھی اس کو نکارتا تو نہیں، لیکن اس کے باوجود اسے پوری حقیقت بھی نہیں مانتا۔ یہ آدھا سچ ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ ہمارا آدھار، ہماری بنیاد اور جڑیں بھارت سے، خاص کر سندھ اور پنجاب سے جڑی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا جنم افغانستان میں ہوا اور ہمارے ڈاکومنٹس وہاں کے ہیں، اس لیے قانونی لحاظ سے ہم افغانی ہندو ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آج قانونی لحاظ سے جرمن، امریکن، انگریز وغیرہ ہو گئے ہیں۔ آگے کیا ہوگا کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ذرا غور سے سوچئے، کیا ہم سچ میں ڈوئچ یا امریکن ہیں؟ کل ملا کر مول روپ سے ہم بھارتیہ ہیں۔ دراصل پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ بھول گئے ہیں یا کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ خاص کر ہماری نئی جنریشن کو تو پچھلے 40-50 سالوں کے اتہاس کا بھی ٹھیک سے پتہ نہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس وشے کو گمبھیرتا سے لیں اور اپنے بچوں اور آنے والی پیڑھی کو اپنے اتہاس اور اوریجن کے بارے میں بتائیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں خود اس بات کو ٹھیک سے سمجھنا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں پہلے تو ہماری کمیونٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہی کم تھے، اور جو تھوڑے بہت ڈاکٹر یا انجینئرز تھے، ان میں سے کسی ایک کے دکے نے ہی کتاب کے نام پر کچھ بکلٹ چھاپ کر کچھ جانکاری دینے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بھی آدھی ادھوری، ایک طرفہ، اور وہ بھی انٹرنیٹ سے کاپی پیسٹ انفارمیشن کے سہارے۔ 60 اور 70 پلس آیو کے بزرگوں کو بھی کچھ سنی سنائی اور آدھی ادھوری گھریلو کہانیوں کے حوالے سے ہی اپنی ہسٹری کا کچھ پتہ ہے۔ دیکھا جائے تو ہماری کمیونٹیز میں کوئی پروفیشنل لیکھک، اتہاس کا جانکار یا سرچ کرنے والی کوئی شخصیت سامنے نہیں آئی۔ میں فی الحال اپنے اس ویڈیو میں اس کی تفصیل میں نہ جا کر صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ افغان ہندو اور سکھ کمیونٹیز کے 99.9% لوگ اصلی یا اصیل افغان نہیں ہیں، کیونکہ عراق، ایران کے بعد افغانستان بہت پہلے ہی عرب اسلامی ہجوم کا شکار ہوا تھا۔ اس سمے نہ ایرانی زردشتیوں کے پاس اور نہ ہی افغانی ہندو اور بودھوں کے پاس کوئی وکلپ تھا سوائے جبراً مسلمان ہونے یا قتل ہونے کے۔ ایران سے کچھ ہی زردشتی سمودائے کے لوگ بھارت پلائن کر گئے، جو آج بھی وہاں پارسیز کے نام سے ایک مائنورٹی کے روپ میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سمے افغانستان سے بھی کچھ لوگ بھارت کی طرف بھاگے ہوں، لیکن ہندو ہونے کی وجہ سے ان کی افغانی شناخت رکھنے کی شاید کوئی خاص ضرورت بھی نہیں رہی ہوگی۔ اس سمے کے اسلامی حملوں کی زد میں پورے کے پورے ملک آئے تھے۔ کچھ سمے کے بعد یہی کنورٹڈ سموہ سندھ اور پنجاب کے راستے بھارت پر حملے کرتے۔ یہ سب مندروں کو توڑنے، لوٹ پات اور راج کرنے کے لیے بھارت پر چڑھائی کرتے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ افغانستان کے پراچین ہندو اپنے دھرم اور کلچر کو آج تک
बचाए रख सकते थे। इसलिए जैसा कि हमारी कम्युनिटी के कुछ इंटेलेक्ट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और नीम हकीमों जो ये दावा करते हैं कि हम असली और प्राचीन अफ़गानिस्तान के हिंदू हैं, सरासर गलत है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आज के अफ़गानी हिंदू और सिख कौन हैं, इनका इतिहास क्या है? इसका सीधा सा जवाब है कि हम भारतीय हैं, असली भारतीय। इसका बड़ा उदाहरण हमारे नाम, हमारी भाषा, हमारे रस्म व रिवाज और हमारे पहनावे हैं। सबसे बड़ा सबूत है हमारे फैमिली नेम। कपूर, मेहता, कक्कड़, बजाज, हिंदुजा, छाबड़ा, जितने भी नाम हैं सब के सब सिंधी, पंजाबी या उत्तर भारत के हैं। तो फिर दूसरा सवाल है कि हम कब और कैसे अफ़गानिस्तान पहुँचे। इसका जवाब भी इतिहास की किताबों से मिलता है। हमारे पूर्वज सब एक साथ अफ़गानिस्तान नहीं आए, बल्कि अलग अलग समय पर जब अफ़गानी लुटेरे हिंदुस्तान से लूटपाट करके वापस लौटते तो ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ लोगों को भी ग़ुलाम के रूप में साथ लाते। फिर कुछ गणित के जानकार हिसाब किताब के लिए मुंशी और ख़जानादार की हैसियत से अफ़गानिस्तान लाए गए और कुछ लोग व्यापार और तजारत की खातिर आते जाते रहते थे। तब धीरे धीरे वहाँ कुछ लोगों ने अपने घर, जायदाद और दुकानें भी खरीदी और वहाँ रहने लगे। ज़ोर और ज़बरदस्ती से ग़ुलामों के रूप में हिंदुओं को लाने वालों में महमूद गज़नवी का नाम आता है और फिर अहमद शाह अब्दाली के समय भी कुछ लोगों को लाया गया। सबसे आखिर में आने वालों में वो लोग शामिल हैं जो हिंदुस्तान के विभाजन के समय आए, जो सिंधी और पंजाबी अलग अलग शहरों जैसे मुल्तान, मरी, सक्खर, शिकारपुर, सराइक वगैरह में रहते थे। ये सब अक्सर अफ़गानिस्तान के कुछ बड़े शहरों जैसे काबुल, कंदहार, हेरात, गजनी और जलालाबाद और इसके आसपास के छोटे शहरों में जैसे लश्करगाह, ग्रीश, तो कुछ चारेकार और परवान में बसे थे। इन्होंने अपने धर्म, कल्चर, भाषा और लिबास को संभाला। नॉर्थ अफ़गानिस्तान में कोई हिंदू नहीं रहता है। बाकी रही बात खोस्त और गर्देश की, तो एक अंदाजे के मुताबिक शायद कुछ लोग ही प्राचीन समय से मुसलमानों के बीच अपना धर्म को तो बचा पाए, लेकिन कल्चर, भाषा और लिबास को बचाना उनके लिए शायद मुश्किल भी था। कुल मिलाकर आज के अफ़गान हिंदुओं और सिखों को हम असली या आदिवासी अफ़गान नहीं कह सकते। इस हकीकत को नकारने वालों में हमारी कम्युनिटी के कुछ मुट्ठी भर लोग और ग्रुप्स शामिल हैं जिनके अपने अपने सियासी एजेंडे और तजारती फ़ायदे हैं। ये लोग खुद तो सामने आते नहीं, लेकिन पसे पर्दा कम्युनिटीज़ के कुछ कठपुतलियों को इस्तेमाल करके अपनी सियासत और तजारत की दुकानें चला रहे हैं। मेरा इस वीडियो का असली मकसद अपने कम्युनिटी के प्यारे भाइयों और बहनों को इस हकीकत से आगाह करना है कि आज जिन नाजुक सियासी हालात और आर्थिक मुश्किलात से दुनिया गुज़र रही है, हम भी उससे अलग और अछूते नहीं रह सकते। हमें अपनी असली पहचान या आइडेंटिटी के लिए सोचना होगा। हमारी अफ़गानी शनाख्त को न हम खुद नकार सकते हैं और न कोई और इसे रद्द कर सकता है। वैसे ही हमारे आज के जर्मन, अमेरिकन वगैरह स्टेटस को भी फ़िलहाल तो कोई रद्द नहीं कर सकता। आगे क्या होता है कोई भी कुछ नहीं कह सकता। इसलिए अगर साथ साथ हम अपनी असली भूमि भारत से नाता जोड़ लें तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक दूरंदेशी का काम होगा, जिसके लिए मैं बरसों पहले ही भारत सरकार से OCI कार्ड के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। OCI कार्ड से हम बेसिकली भारत के साथ जुड़ जाएंगे तो वहाँ के कुछ अधिकार भी सुरक्षित हो जाएंगे।
जैसे कि हमें वहाँ जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, बिज़नेस की सहूलियत, और अगर भगवान न करे कल कोई सियासी मुश्किल पेश आती है तो वहाँ की सरकार हमारी मदद कर सकती है। इस कार्ड को हासिल करने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई भी नहीं। इस कार्ड को हासिल करने के लिए हम सबको एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी। हमें वहाँ के समाजी कम्युनिटी से ख़ुद को जोड़ना होगा। उनकी सपोर्ट से हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हमें ऐसे संगठनों से ख़ुद को जोड़ने की ज़रूरत है। हाल ही में मेरा संपर्क सिंधी समुदाय के सबसे बड़े संगठन VSSS मतलब विश्व सिंधी सेवा संगम से हुआ, जो अब तक दुनिया के 76 देशों और हिंदुस्तान के 29 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक, बॉलीवुड और स्पोर्ट्स से जुड़े लोग शामिल हैं। फ़िलहाल मुझे इस संस्था के फाउंडर श्रीमान गोपाल सजनानी और चेयरमैन लॉयन डॉक्टर राजू मनवानी ने इस संगठन में कंट्री प्रेसिडेंट के लेवल पर जर्मनी का अध्यक्ष सेलेक्ट किया है। ये संगठन सिंधी भाषा कल्चर के साथ साथ बहुत सारे चैरिटी के कामों में एक्टिव है। कोरोना के समय इन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की। फ़िलहाल मैं अपने सिंधी भाई बहनों को इस संगठन में जोड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ, जिसमें शामिल होना बहुत आसान है, जिसके लिए हमें सिर्फ आपके नाम, एड्रेस और बर्थ डेट की ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन और कांटेक्ट के लिए एक ईमेल आईडी और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए आपका मोबाइल नंबर। कम्युनिटी में शामिल होने की फ़ीस 1 साल के लिए सिर्फ €2.5 है। याद रखें, 1 साल के लिए €2.5। आपको न कहीं दस्तखत करना है, न अपना कोई आईडी प्रूफ देना है। आप मुझे सिर्फ अपना नाम, एड्रेस, बर्थ डेट और एक ईमेल एड्रेस व्हाट्सएप पर भेजें, बस इतना ही। आप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि एकजुट होने के इस मौके को हाथ से जाने न दें। फ़िलहाल मैं अकेला हूँ और मुझे अपनी सिंधी कम्युनिटी से एक फोर्स्टंड टीम बिल्ड करनी है। आप में से जिनके पास टाइम, इंटरेस्ट और आइडियाज़ हों तो आपका स्वागत है। मैं सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखता हूँ। मैं अपनी ओर से आपको आश्वासन देता हूँ कि ये एक समाजी सेवा संगठन है। इससे जुड़कर आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी तसल्ली के लिए इनके वेबसाइट और यूट्यूब को विज़िट करें। लोगों की बेकार अफवाहों की तरफ ध्यान न दें। हम जो भी कर रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन और आपकी सवालों के लिए मैं आपकी सेवा में हाज़िर हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 017771944337। जो लोग जुलाई के एंड तक कम्युनिटी में शामिल होंगे, उनकी फ़ीस अगले साल से शुरू होगी। आपको बता दूं कि इस संगठन में अब तक कुछ भाई बहन हमारे शामिल हो चुके हैं। बाकी आपको ये आश्वासन देना भी ज़रूरी समझता हूँ कि आपके नाम, एड्रेस और बर्थ डेट की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। ये आगे किसी और को नहीं दिया जाएगा। आपकी सेवा में उपस्थित आपका मनोहर गाबा। सर्वेषां शांतिर्भवतु।